All right, so we are starting application of foraminiferal ecology. Okay, let me find out the white background. This topic is applications of foraminiferal ecology, and I was searching the white background, but I don't find the white background. So, is it visible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The content will include introduction, distribution of species to determine paleo depth. Means we can determine the depth of water at the time of deposition. Planktonic species, paleo temperature of surface water, wall characteristic of species. We can work out the paleo depth. Application in paleo monsoonal precipitation. Monsoon is variable, and there is record of change in monsoon variability in the sediments, so that is possible with foraminifera. Paleo environment of deposition of sediments that we have discussed in and then climatic inferences based on the morphological groups, rounded, elongated, or any other. Similarly, planktonic benthonic ratio and number of benthodic tests. So these are the three parameters on the basis of that we can describe the climatic inferences. Coiling direction in planktonic species, in actual way, the formula, how it is done, except everything. Isotope study, either we are using a carbon isotope, or we are using oxygen isotope, or we are using strontium isotope. So we are going to discuss all these things. If we are using oxygen isotope, we will determine the paleo temperature. Similarly, carbon isotope also for the depth of water also, and strontium for various geochemical consideration. Then we have application of foraminiferal ecology in boundary problem. Boundary problem means stratigraphic boundary problems. I told you there are always problems in correlating stratigraphic boundaries, and that correlation varies from one continent to another, or sometimes from one basin to another, but generally from one continent to another. So how to solve the problems which are existing in stratigraphy on the basis of foraminiferal ecology. And then lastly, we will discuss the foraminiferal assemblages and the environment and microenvironment of deposition. So this is the list. If somebody is asking in which fields the ecology of foraminifera is useful, you can count all these. One page answer if you want to give only in 10 lines. This is the content. Okay. Then let us see one by one. Introduction. I told you that ecological studies of foraminifera, it is based on oceanographic investigations.
whether these oceanographic investigations are conducted in vivo or in vitro. You understand in vivo and in vitro? Anyone? In vivo and in vitro? In vivo matlab right in the field or right in the water body where they are occurring. In vitro means we bring the specimen in the lab and we make experimentation on the species in the lab. That is called in vitro. And if we study there, scuba divers are there, shallow water divers are there. They go and they study the ecology of foraminifera thereupon. So they are scientists. They are not divers. They are scientists. They do it thereupon, and this is how the ecology is inferred. Then actually, if there is a question why foraminifera are more useful compared to the rest of microfossils in the various kinds of application studies, these are the points which are in the form of answer. Actually, we can work out the environment of present as well as past on the basis of foraminifera. Second, biostratigraphy and high resolution biostratigraphy and biostratigraphic correlation is very well possible. Why it is possible? Because they are occurring right from Cambrian to recent, and they are occurring in all the micro environment. Now you have understood that they are occurring in all the possible micro environment, whether horizontal environment or vertical bathymetric environment. Everywhere they are there. Only very few places will be there where foraminifera will not be there. Otherwise, they are always there. Tracing up of stratigraphic boundaries, paleolatitudinal reconstruction and marine transgression and regression. I told you that many a times in oceanography, it is studied that gaps have been formed between the two continents. Sometimes these gaps have been filled up. Example I cited to you is the North America and South America. There was a gap between the two. That is what's called as Proto Gulf of California. And in Middle Miocene, it was filled up. Similarly, there was a gap. This Indian archipelago means your down to your Mizoram, and Burma, Sumatra, Java, Indonesia. These all the islands were not there, or this land strip was not there. It has developed after Middle Miocene. So these studies foraminiferal help is very useful, and you can say physical, chemical, biological, oceanographic environment can be used in the study of sediment transfers, upwelling, major oceanic currents, and of course in oil exploration. So if you have a short note, why foraminifera are important over others, these are the lines which you can develop. These are the headlines or subheadings in which you need to write 2 or 3 lines each if you get a short note. But if you get a full question, then you have to give more details. So this is what we have in detail. Application based on different ecological parameters. One is distribution of species for paleodepth. This is first point. Am I audible? Yes, sir. Are you Yes, sir. understanding? Okay. I told you that distribution pattern of benthic and planktic, calcareous and agglutinated are belonging to different water masses. Marshes, there is another assemblage. Beach, there is another assemblage. Channel, lagoon, inner, outer, innertic bay or bays, and bathyal and abyssal zone. Each one has a characteristic assemblage that I have shown you in the form of plate. So the moment you see the plate, you are able to tell, sir, this is the environment in which the assemblage was developing. Second, coastal shelf area is dominated by benthic species. And planktic species, you get away from it. So what will the ratio of planktic foraminifera will increase towards deeper water, or it will increase towards the coastline? What is your idea? If you go deeper in water or away from the coastline, the ratio of planktonic foraminifera will increase in relation to benthic. Yes or Yes, no? sir, increase. Yes. And the ratio, यदि आपको 20 प्लैंक्टिक और 1 बेंथिक मिलता है, मतलब डेप्थ कितनी आ गई? 200 मीटर or more, depending upon the other geographical or geomorphological setup. So this is why it is called planktic benthic ratio, and it directly gives you the depth of water in which the sediment was deposited. जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आएंगे, शोर की तरफ आएंगे, बेंथिक का रेशियो बढ़ेगा. अब
जब मैं बेंथिक कह रहा हूँ तो अकेली कैलकेरियस नहीं कह रहा हूँ, दोनों कह रहा हूँ, कैलकेरियस एग्लूटिनेट, मतलब रेशियो प्लैंक्टिक वर्सेस बेंथिक का है, चाहे वो एग्लूटिनेटेड हो या कैलकेरियस हो। जब हम 20 मिल गई मतलब 200 के आसपास एवरेज आ गए, और उसके बाद बढ़ती चली जाएंगी प्लैंक्टोनिक, एंड यू विल गेट वेरी फ्यू बेंथिक एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्लैंक्टोनिक अंटिल विच जोन, अंटिल विच जोन, अंटिल डेप्थ जोन किसके कब तक, एनीवन? प्लैंक्टिक कब तक बढ़ती जाएंगी? भूल गए, 2 दिन हो गए ना, 1 दिन हो गया। अरे भाई सीसीडी के नीचे काय के लिए प्लैंक्टिक मिलेंगी, कैलकेरियस हैं, ठीक है, वो डायग्राम आप भूल गए। और जैसी सीसीडी आएगी प्लैंक्टिक का रेशियो खत्म होता कम होता जाएगा, और जो बचेंगी वो क्या होंगी, सिर्फ कोल्ड वाटर या डीप वाटर एग्लूटिनेटेड स्पीशीज। याद आया कि नहीं आया? याद आया ना? Yes, sir. सुनाई दे रही मेरी Yes, आवाज? नहीं, सुनाई दे रही कोई है। बोलते ही नहीं यार। त्रिपुरारी, am I audible? Yes, sir, audible. हाँ, तो बोलते क्यों नहीं है यार तुम लोग? ये आपको ये डायग्राम में बार बार थोड़ी दिखाऊंगा ये वाला, अब ये तो मैं दूसरी चीजें पढ़ाऊंगा आपको। ऑडिबल तो है, समझ नहीं आ रही क्या? तो बार बार वही चीज मैं पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रही। सीसीडी तक बढ़ेंगे ना, सीसीडी के नीचे तो वो हर बार क्या रेफर करूं, क्या हर बार? No, sir, याद है सर। हर बार रेफर करूं? मैं हर बार वही वाली स्लाइड फिर से बार बार रेफर करूं क्या? No, sir. फिर नहीं, याद कहां से है? नो सर बोल रहा हो, रुको मेरा डायग्राम पर दिखाऊंगा क्या? अरे आपने जवाब क्यों नहीं दिया? मैं पूरी क्लास में इतने लोग बैठे हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि कहां तक जाए, इसके बाद क्या होगा, तो आपको जवाब ही नहीं दे रहे। आप आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जा रहे हैं सब। मेरे को फिर से आपको वो चीज थोड़ी सी बतानी पड़े, आगे इकोलॉजी, फोरम इकोलॉजी। आपका टाइम आपका जा रहा है ना? मैं वो पूरी वो दिखाऊं? इकोलॉजी, चलिए इसमें भी होगा वो। इसमें भी होगा। हाँ, ये यहाँ से मैंने बताया ना, जैसे सीसीडी आई तो ये कैलकेरियस जो है प्लैंक्टोनिक भी कम होने लगे, ये प्लैंक्टन यहाँ का यहाँ से खत्म होने लगे, और यहाँ उसके बाद ये बेंथिक भी खत्म होने लगे। तो डोमिनेटिंग किसका रेशियो कौन सा बनाना पड़ेगा फिर हमको 3000 या 4, जैसे सीसीडी आई तो हमें रेशियो बेंथिक वर्सेस बेंथिक की जगह कौन सा लेना चाहिए? कैलकेरी वर्सेस एग्लूटिनेटेड। तब आपको डीप वाटर का, इसलिए मैंने इसको कि सीसीडी तक बेंथिक वर्सेस, ऐसे ऐसे आप लोग करेंगे तो हो गया काम फिर, है ना? फिर और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑयल एक्सप्लोरेशन का बता दिया, चलिए है ना? सीसीडी तक आपका चलेगा, पीबी रेशियो चलेगा। अब लिविंग एंड डेड का रेशियो देखेंगे,
लिविंग एंड डेड का रेशियो क्या बताएगा? रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यदि कोई असेंबलेज मिल रहा है और उसमें आपको लिविंग स्पीशीज ज्यादा मिल रही हैं और डेड स्पीशीज मिल रही है, मान लीजिए आप Sir, your voice is breaking. आपको कम मिल रही है क्योंकि लिविंग जो है बरीड होती जा रही है। ठीक है, लिविंग टेस्ट शो डिक्रीज इन दी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, लिखा ही हुआ है वहां पर। ठीक है, तो अब आपको देखिए, आपको क्या क्या पता लगता जा रहा है? आपको जोन पता लग रहा है, मार्श, बीच, चैनल, लगून, इनर, आउटर, बेथियल, एसल पता लग गया। फिर आपको डेप्थ पता लग गई 200 मीटर तक, 200 मीटर के बाद से लेके सीसीबी तक पीबी रेशियो यूज करना है, बेंथिक यूज करना है। आपको किसी जगह होगा रिसेंट में, मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, है ना, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन मैंने जैसे आपको बताया था, गल्फ ऑफ मन्ना प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर क्या होगा? डेड का रेशियो ज्यादा होगा क्योंकि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ज्यादा है, वहीं आके सारा सेडिमेंट डिपॉजिट होता है। वो एक मैंने पेपर भी डाला था, आप लोग ने पढ़ा था उसको? नहीं पढ़ा था? Yes, sir. खत्म होंगी और उसमें लिखा हुआ था कि बीटी है, टर्बुलेंस बढ़ता रहेगा, टर्बिडिटी बढ़ेगी, सारी स्पीशीज खत्म होंगी और फिश जो ट्रॉपिकल कैल्केरियस आर पुअरली accumulated due to dissolution, making the ratio of diverse deep water accumulated। ये अपन ने ऊपर डिस्कस कर ही लिया, इसलिए यहाँ पर ये पांचों चारों पॉइंट डिस्कस हो गए। एनी क्वेश्चन इन दीस पॉइंट्स? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? No question. All right. So wall characters of failure depth. अब यदि हम वॉल को देखें तो हमें डेप्थ के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन? मिलियोलिट फॉर्म कहाँ पर टर्मिनेट होंगे? इनर शेल, जिसमें कि बाइलॉकुलाइन बेथियल जोन में ज्यादा है। आपको मिलियोलिट ज्यादा मिल रहे हैं तो इनर शेल एरिया है, और बाइलॉकुलाइन फॉर्म मिल रहे हैं, बाइलॉकुलिना कल भी मैंने बताया आपको, तो आप बेथियल जोन में जा रहे हैं। चलिए, बात समझ में आई? नंबर 2, स्मूथ वॉल कैल्केरियस परफोरेटेड स्पीशीज इनर शेल में मिलेगी, और सिंपल ऑर्नामेंटेड स्पीशीज जिसमें की कोस्टली हिस्ट्री होगी आउटर शेल में, और उससे ज्यादा ऑर्नामेंटेड होगी तो वो किसको बिलोंग करेंगे? मैंने आपको बताया एग्जांपल, यूविजरीना, प्लेन यूविजरीना, स्पाइनोज यूविजरीना, पोस्टेड यूविजरीना, हेवीली पोस्टेड। डू यू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर डायग्राम? एक ही में मैंने सारे बना दिए थे। ठीक है, और यही इसमें नीचे लिखा, कोर्सली ऑर्नामेंटेड लार्जर थिकर फॉर्म्स इन डीपर जोन। वही स्पीशीज, आपको कई स्पीशीज हमने पिकअप कर ली हैं, जिसमें कि एक एग्जांपल मैं यूविजरीना का इसलिए देता हूं आपके प्रैक्टिकल में। ऐसी कई स्पीशीज हैं जो कि अपनी डिग्री ऑफ ऑर्नामेंटेशन से हमको डेप्थ ऑफ वाटर बताती हैं, और पेलियो डेप्थ ऑफ वाटर भी बताएंगी। सेडिमेंट में आपको पेलियो डेप्थ, तो यदि आप कहीं ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और आपको शैलो वाटर स्पीशीज मिल रही हैं, हाई रेट ऑफ सेडिमेंटेशन मिल रहा है, तो ऑयल के चांसेस बनने के ज़्यादा थे। और जैसे जैसे आपको डीप वाटर फॉर्म मिलने लगे और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम मिलने लगे, तो चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा? लो। डू यू गेट माय पॉइंट? डू यू गेट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then simple agglutinated species, bay and lagoon. But labyrinthic wall species with siphonate chambers, they show central outer shelf and bathyal. एल्वियोली मैंने आपको बताया था, ब्रांच स्पीशीज डीप वाटर में जा चुकी है, तो उसमें वाटर की जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको इस तरह के एल्वियुलर स्ट्रक्चर या लेब्रिंथिक वॉल मिलेंगे, क्योंकि शेल को या जो एग्लूटिनेटेड टेस्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है एनिमल।
तो आपको यदि एग्लूटिनेटेड विदाउट लेबरिंथिक वॉल मिलती हैं तो वो शैलोअर कंडीशन शो करती हैं, लेगून और बे कंडीशन शो करती हैं, और यदि आपको लेबरिंथिक मिलती है तो वो आउटर शेल्फ, सेंट्रल शेल्फ, आउटर शेल्फ या बेथियल जोन को इंडिकेट करती है. इज इट ओके? So these are the 5 points which show the depth of water on the basis of wall character. अब देखिए वॉल कितनी इंपॉर्टेंट है. सिर्फ वॉल देखी आपने और आपने वाटर की डेप्थ का अंदाजा लगाया. ओके, तो ये हुआ एप्लीकेशन, डायरेक्ट एप्लीकेशन हुआ इकोलॉजी का. अब मैं इसको दोबारा इसलिए पढ़ाता हूं कि आप इकोलॉजी तो सब है, यहां हमको सीधा इंडिकेशन लिखना है. मैं आपको बताऊं बहुत से लोग नहीं समझते इस बात को. अब जैसे मैंने ये सारे वीडियो यूट्यूब पे डाले हैं तो एक साल में मॉर्फोलॉजी और इकोलॉजी वाला वीडियो, हमारा मॉर्फोलॉजी वीडियो अबाउट 4000 लोग देख चुके हैं 1 ईयर, और इकोलॉजी का भी 3000, मेरे ख्याल से 3000 के आसपास लोग देखे. लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ इकोलॉजी है वो बहुत कम लोगों ने देखा. क्यों? क्योंकि उनको लगता है वही चीज है. But now here you understand how directly it is giving you information. So after teaching you this, I will give you the link of the ecology of ecology I have already given. I will give you application of ecology in geology. Then planktonic species for paleo temperature. A little idea I have given you. There are cosmopolitan. Cosmopolitan means cosmic. Everywhere they are. फॉर एग्जाम्पल ग्लोबोरोटेलिया मेनार्डी. एक दो एग्जाम्पल और मैंने दिया, ग्लोबिजरीना बुलाइडिस, ग्लोबिजरीनाइडिस र्यूबर. दीज आर सम ऑफ द कॉमन स्पीशीज. अब जो ये जो ग्लोबोरोटेलिया मेनार्डी है, अब आपको नाम आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू रिमेंबर, बट इफ यू कैन रिमेंबर ग्लोबोरोटेलिया क्या है, कैसी स्पीशीज है? एनीवन? ये लिखिए ग्लोबोरोटेलिया. इसमें से कुछ तो कील प्लैंक्टोनिक है ना. ये रेयर मिलेगी नॉर्थ ऑफ 18 नॉर्थ के बाद आपको बहुत कम मिलेगी. मतलब आप जैसे ही कम होनी शुरू हुई आप समझ लीजिए 18 नॉर्थ के आसपास आप पहुंच गए. और इट रिमेन्स कॉमन इन एरिया ऑफ साउथ इक्वेटोरियल करंट एंड abundant in इक्वेटोरियल. सबसे ज्यादा मिल रही है तो आप किस जोन में है? इक्वेटोरियल. अभी रॉक में आपको ग्लोबिजरीना मेनार्डी सब बहुत ज्यादा मिल रही है, abundant. तो you are close to the equator. If it is little less, then you are going away from the equator. And if you, when moment you cross 18 degrees north, then you will get this Globorotelia menardi as a rare species. तो आप क्या करें? दुनिया भर में क्या किया लोगों ने? ग्लोबोरोटेलिया मेनार्डी का डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाया. तो उनको डिफरेंट जोन्स पता लग गए और उसी को अप्लाई कर देते हैं रॉक्स में. तो उनको पता लग जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबोरोटेलिया मेनार्डी वो रॉक जो बेसिन जो है जहां रॉक का सेडिमेंटेशन हुआ है वो किस लैटिट्यूड पे स्थित थी. इसी तरीके से दे आर गुड paleothermometers. Thermometer means temperature measuring equipment. Paleothermometer means of past. These are the paleothermometer. Globigerina bullaidis, it dominates in slope water during summer, but it is replaced by Globigerinoides र्यूबर in cooler months. तो आपको डायरूनल मिल रहा है, मतलब साल में कुछ महीने आपको ग्लोबिजरीना बुलाइडिस मिल रहा है और कुछ महीने आपको क्या मिल रहा है? ग्लोबिजरीनाइडिस र्यूबर. ग्लोबिजरीना बुलाइडिस नाम याद रख लीजिए, ये हर जगह आएगा. ग्लोबिजरीना तो आपको याद है, इसको रख लीजिए ग्लोबिजरीना आर या ग्लोबिजरीना बुलाइडिस. ये ग्लोबिजरीना बुलाइडिस यहाँ पर लिख दिया मैंने. ग्लोबिजरीना आर नाम याद रखिए, यहाँ इसको बी नाम याद रखिए और यहाँ पर आप याद रखिए ग्लोबिजरीनाइडिस र्यूबर. तो आपको स्लोप वाटर में समर में आपको ग्लोबिजरीना बुलाइडिस डोमिनेट करेगी और विंटर में आपको ग्लोबिजरीनाइडिस र्यूबर वो करेगी. अब मान लीजिए आप कोई कॉलम ले रहे हैं, रॉक कॉलम है ना, या आपने कोई बोरहोल डाटा निकाला है ना. अब मान लीजिए आपको अल्टरनेटिंग ग्लोबिजरीना बुलाइडिस, ग्लोबिजरीनाइडिस र्यूबर अल्टरनेटिंग डोमिनेटिंग मिल रहा है.
है ना, एक में जी बी, एक उसके बाद जी आर, जी बी जी आर, जी बी जी आर। क्या मतलब हुआ इसका? कैन एनीवन टेल मी? दोनों अल्टरनेटिंग बराबर मिलते जा रहे हैं, और एक केस है जिसमें कि कुछ देर तक ग्लोबिजरीना बुलाइडिस मिल रहा है, उसके बाद रिवर मिल रहा है, या रिवर ही रिवर मिल रहा है, फिर उसके बाद बंद हो गया, ग्लोबिजरीना बुलाइडिस मिलने लगा, डोमिनेटिंग अलग अलग होने लगी। दोनों की स्थितियों में क्या अंतर हुआ? एनीवन? ट्राई करिए। पेलियो टेम्परेचर सर। पेलियो टेम्परेचर तो मैं ही बता रहा हूँ यार, मैं ये बोल रहा हूँ अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग अल्टरनेट। सर, ठंड होगी सर और गर्म होगी सर। हाँ, अभी बिल्कुल शुद्ध हिंदी में ईयर बोल की रहे हैं, कोऑर्डिनेट ये इंडिकेट। फुजैल होगा, ये फुजैल, फुजैल है कौन है? यस सर। हाँ, ठंडी गर्मी में ऐसा मत बोलो, ये बोलो कूलर एंड वार्मर कंडीशन अल्टरनेटिंग थी, मतलब टेम्परेचर ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंटिन्यू था। लेकिन यदि ग्लेशियल में आप एंटर कर गए पीरियड में, या सेमी ग्लेशियल में एंटर कर गए, तो कौन सी चीज डोमिनेट मिलने लगेगी? रिवर। ग्लोबिजोरिन रिवर सर। अब मान लीजिए ये डायग्राम एक ऐसा बनाए, ये तो बिना पढ़े लिखे लोग ऐसा डायग्राम बनाएंगे। जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो क्या करेंगे, एक ले लेंगे जीरो, मतलब जीरो मतलब 50-50, और एक तरफ ले लेंगे ग्लोबिजरिनाइडिस, ग्लोबिजरिना बुलाइडिस, है ना, एक तरफ ले लिया हमने, ये तो हो गई जीरो लाइन, मतलब जीरो। एक लाइन ले ली हमने किसकी, जी बी, और एक इधर लाइन ले ली हमने जी आर, ठीक है। अब मान लीजिए ये लाइन इसी तरफ चले, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां शिफ्ट हुई और फिर इधर चली, फिर यहाँ शिफ्ट हुई, फिर इधर चली। आपने यहाँ की डेटिंग कर ली, यहाँ की डेटिंग कर ली, मान लीजिए 0 ईयर है, और ये मान लीजिए 500 ईयर है या 1000 ईयर है ना। तो 1000 ईयर से कौन सी क्लाइमेट प्रिवेल कर रही है? हॉट। 1000 से लेके मान लीजिए 1500 तक आपको क्या मिल रहा है? ग्लोबिजराइडस रूबर। तो यहाँ पर कौन सी क्लाइमेट प्रिवेल कर रही है? कूल। उसके नीचे फिर हुआ, यही तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो बजाय इस डायग्राम को समझे, हम सीधा का सीधा बोर होल डाटा लें। आजकल रिसर्च पेपर में आप देखेंगे तो आपको ये सब डाटा, ये सब कुछ नहीं मिलता। आपको क्या मिलेगा सीधा? मैं आपको एक थीसिस दिखाऊंगा रिसर्च पेपर में, आपको नहीं चाहता कि मैं आपको रिसर्च लेवल पे ज़्यादा ले जाऊं, लेकिन ये डायग्राम आपको इसी तरीके से बने हुए मिलेंगे। ब्लैक बोर्ड पे हम लोग जरा जल्दी ये बना लेते हैं, यहाँ बड़ी दिक्कत होती है बनाने में ना डायग्राम को। ये देखिए, मान लीजिए हमने ये ब्लैक बोर्ड होता तो हम ये यहाँ पर ये एक हम बनाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमने ये बनाया, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। इसको हमने कोई अलग कलर दे दिया, इसको हमने दे दिया मान लीजिए वाइट, ठीक है। फिर ये हम लिखिए, ये हमने है ना, और फिर हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ ड्रॉ की। ये लाइन हमने ड्रॉ की किसकी? जीरो लाइन। ये जीरो लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। और एक लाइन हमने कौन सी ड्रॉ की? परसेंटेज। तो इस साइड लेफ्ट में हमने क्या रखा? ग्लोबिजरिनाइडिस, ग्लोबिजरिना बुलाइडिस। तो ये परसेंटेज किसके फेवर में आ रही है? फिर ये यहां से शिफ्ट हुई तो ये इसके फेवर में आ रही है। इतनी सीधी नहीं होगी लाइन, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो वही कंफ्यूजन था, लाइन टेढ़ी क्यों है, ये ऐसी ऐसी। और मान लीजिए ये 500 का पीरियड है, हर एक ब्लॉक 500 का है, तो अपर ब्लॉक वार्मर टेम्परेचर शो कर रहा है, उसके नीचे का ब्लॉक 500 से 1000 क्या कर रहा है? कूलर कंडीशन।
1000 से 1500 वार्मर कंडीशन, 1500 से 1000 या 2000 तक कूलर कंडीशन। आ गया ना? कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत तो नहीं पड़ी। No, दिस sir. इज हाउ वी स्टडी। इतना मतलब इसीलिए इसको कहते हैं, इट इज वेरी रियली वेरी, इकोलॉजी इज वेरी यूजफुल इन वेरियस एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसको चलिए वापस चलें। यस, इसके बाद देखिए, ये fauna of lower latitude may be similar to the modern fauna of the higher latitude. Can anyone explain this line? Fauna of lower course in lower latitude. Lower latitude means in lower latitude, tropical. Lower core in lower latitude. Can anyone explain this thing? हाँ भाई, अब तो इतना पढ़ लिया तुम लोगों ने। अब कहाँ गई श्रेया? श्रेया, श्रेया इज देयर? Yes, sir. श्रेया, तुम पैलेंटोलॉजी को ऐसा पैलेंटोलॉजी नहीं समझो अब, है ना, हाथ में लेके फॉसिल घुमाने वाली। अब पैलेंटोलॉजी देखिए कहाँ पहुंच रही है। और कोई? सिर्फ त्रिपुरारी, जो लोग पहले जो एडमिन है उनसे पूछ लेता हूं मैं। फिर चलिए शुभांग, एनी आइडिया? शुभांग, आर यू देयर? शुभांग, शुभांग है वहां? नहीं है, नहीं है शुभांग। चलिए श्रुति, श्रुति इज देयर? किसी को पढ़ने से मतलब नहीं। चलिए हर्षिता, हर्षिता भी नहीं है। अवनीश? Yes, sir. हाँ, बताओ इसका मतलब। लोअर कोर ऑफ इन लोअर लैटिट्यूड जो है 0 के आसपास, 0 से नॉट 20 नॉट, है ना, उनकी लोअर कोर में आपको लगभग वही फॉर्म मिलेंगे जो कि मॉडर्न फौना की हायर लैटिट्यूड में मिल रहा है। कैसे? यदि आप समझ गए तो। अब मैं समझ गया कि वो जो दूसरी यूट्यूब की पिक्चर है वो ज्यादा लोग क्यों नहीं देख रहे हैं, ऊपर से निकल रही है, जबकि मैं समझा चुका हूं ये। आपको मिडिल लैटिट्यूड की हायर डेप्थ में किसका रेशियो, पहले तो पीवी रेशियो ज़्यादा मिलेगा, फिर किसका मिलेगा? एग्लूटिनेटेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. हाँ है ना? हाँ. हाँ। और जब आप 0 से लैटिट्यूड मॉडर्न फौना में चलेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो कौन से फॉर्म मिलेंगे, एग्लूटिनेटेड या कैलकेरियस? अब बात समझ में आ गई, है ना? तो अब ये इसीलिए मैं समझ गया कि ये कितनी भी सिंप्लीफाई कर दो यार, तुम लोग थोड़ा एक बार बताओ, इंडियंस आर नोन फॉर वेरी गुड ब्रेन्स, है ना, इतना अच्छा ब्रेन इंडियन का है, और तुम लोग ब्रेन का इस्तेमाल कुछ कम कर रहे हो यार, है? हम लोगों को तो हमारे टीचर्स ने, हो सकता है हमारे टीचर ज़्यादा अच्छे हों, हम लोग कहीं भी बैठते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो हम लोगों को समझ में ना आ रही हो, है ना। हो सकता है हमारे टीचर ज़्यादा अच्छे थे, आपके टीचर उतने अच्छे नहीं है, हम लोग उतने अच्छे नहीं है। But whether I am sitting in India or in Germany or in Japan, I have gone to many places. But whatever they were discussing, I could understand. And whatever I was discussing, they were not able to understand. Then I had to explain to them why I was discussing this. So please see that your understanding capacities are better than other people. Okay. Phytoplankton productivity. Phytoplankton productivity is algae, basic. Primary crop. It controls the distribution of planktonic. तो यदि आपकी सैलिनिटी ठीक है, टेम्परेचर ठीक है, ऑक्सीजन ठीक है, फॉस्फेट ठीक है ना, ये जो है, तो ये दूसरी तरह से तो असर डालेंगे।
लेकिन यदि फाइटोप्लैंक्टन बहुत ज्यादा है तो प्लैंक्टोनिक क्रॉप सबसे ज्यादा होगी। तो आपको सीजन में एक बार आपको हाई प्लैंक्टोनिक क्रॉप मिलेगी ट्रॉपिकल्स में या सब ट्रॉपिकल। मतलब आपको अल्टरनेटिंग हाई पॉपुलेशन, फिर मॉडरेट पॉपुलेशन, फिर हाई पॉपुलेशन, फिर मॉडरेट पॉपुलेशन मिलेगी। इसका मतलब क्या हो रहा है? क्लाइमेट अल्टरनेटिंगली वार्मर और कूलर है, जैसा अभी मैंने पहले बताया था। अब मान लीजिए आपको सीधी सीधी हाई पॉपुलेशन मिलती जाती है एक पर्टिकुलर मिलियन ईयर से लेके या एज से लेके और दूसरे एज तक। इसका मतलब क्या था? bloom in टेम्परेचर population, कांस्टेंट। हाँ, warmer climate थी, bloom in population in the these phytoplankton was there. So this is how we understand not only the ecology but paleoecology of the ocean. आपको ये याद है कि नहीं है? सर भूल जाते हो यार। ये सर देखिए, आपकी वॉइस चली गई। वॉइस नहीं आ रही है। चलिए, अब आ रही है। यस सर। हाँ अभी आ रही सर। अब देखिए, ये ऊपर वाला जोन क्या है? 200 मीटर का। इसके पहले भी एक डायग्राम दिखाया है मैंने इसके पहले वाली क्लास में, जिसमें मैंने, देखिए इसमें होगा तो मैं दिखाता हूँ। भूल जाते हो यार तुम। यार ये भी है, इसके पहले भी एक बार दिखाया है, वो फिर मुझे निकालना पड़ेगा यार। मॉर्फोलॉजी फॉर मॉर्फोलॉजी, फिर से निकालना पड़ेगा। इसमें नहीं होगा, इसमें। यदि आप लग के पढ़ लें तो बड़ी जल्दी ये चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना? इसमें है वो, मैं भूल जाता हूँ इसमें है। अभी आपको 2-3 चैप्टर और पढ़ने हैं। जनरल एप्लीकेशन माइक्रोफॉसिल्स 27-7 इसमें देखो। Yes, yes. This is here. Are you able to see? Yes, ये sir. है एपिपेलेजिक यूफोटिक जोन। इसमें ये देखिए ये फोटिक जोन इतना तक मैक्सिमम फोटिक जोन है। तो ये 50 से लेके 100 तक मैक्सिमम मिलेंगी, ठीक है। और उसके नीचे आपको क्या मिलेंगी? के नीचे आपको ये देखिए यहाँ पे भी दिखाया है डिस्फोटिक, ये फोटिक है, फिर डिस्फोटिक है, एफोटिक है। फिर मैंने आपको बताया था रेड का पेनिट्रेशन, येलो का पेनिट्रेशन, ग्रीन का पेनिट्रेशन और ब्लू का पेनिट्रेशन। सबसे ज्यादा ब्लू का है, इसलिए ओशन वाटर ब्लू दिखता है आपको स्कैटरिंग में। और अल्ट्रावायलेट लाइट जो है यहीं तक जाती है, इसीलिए लाइफ यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट में रह नहीं सकती। तो पहले जो लाइफ शुरू हुई थी, इसीलिए डीप वाटर में या एकदम शैलो वाटर में ना होके थोड़ा सा डीपर वाटर में हुई थी। जैसे जैसे आपकी ओजोन लेयर बनती गई, लाइफ निकल के बाहर आई, तभी लाइफ बाहर आई, तब की ओजोन लेयर बन गई। अदरवाइज ओजोन लेयर के कारण नहीं थी तो अल्ट्रावायलेट लाइट के कारण लाइफ मिलती ही नहीं थी। एनीवे, सो ये चीज है। उसके बाद मैंने एक और आपको बताया, वो इस वाली स्लाइड में नहीं है, देखिए शायद हो।
इसमें नहीं, वो है, मैंने आपको एक डायग्राम बताया है, ये देखिए ये वाला, इसमें देखिए इसमें क्या बताया है, ये 100 है। आर यू एबल टू सी? स्पाइनोस कहाँ मिल रहा है? 50 से 100 के बीच में। और कील प्लैंक्टोनिक ग्लोबोरेटेलिया कहाँ मिल रहा है? डीपर लेवल। यू कम बैक टू दी ओरिजिनल प्रेजेंटेशन। ये क्या कह रहा है? Spinous planktic forms indicate involvement of euphotic zone. Okay. Keeled planktonic, thicker planktonic species Globoretelia shows lower zones. तो जो डोमिनेट करे उस हिसाब से हम यूफोटिक जोन में भी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे कि ये अपर जोन है या लोअर जोन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अब टेम्परेचर का उस दिन मैंने आपको शॉर्ट में बताया था। पॉपुलेशन एंड वॉल कंपोजिशन, दोनों चीजों से क्या पता लगा? डेप्थ एंड टेम्परेचर। क्या बताया था मैंने? कैलकेरियस फॉर्म 12 डिग्री टेम्परेचर, शैलो वाटर और लोअर लैटिट्यूड्स, है ना। टेम्परेचर लो हो, टेम्परेचर लो कब होता है? जब डेप्थ बढ़ती है या जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं। तो शैलोअर वाटर में आपको 12 डिग्री तक मिलेगा, लेकिन जब आप डीप वाटर में जाएंगे टेम्परेचर कम होने लगेगा। उसी रेशियो में प्लैंक्टोनिक, उसी रेशियो में कैलकेरियस फॉर्म कम होने लगेंगे। और वो डायग्राम जो अभी रेफर किया था वो फिर से आप देख लीजिए। और इसी तरह से आप लोअर लैटिट्यूड में ऊपर जीरो तरफ जाएंगे लैटिट्यूड में, तो आपको टेम्परेचर कम होने के कारण कैलकेरियस फॉर्म कम मिलने लगेंगे। तो आप दोनों में से डिसीजन ले सकते हैं कि वेदर इट इज बिकॉज ऑफ द डेप्थ that the agglutinated species are increasing or their ratio is increasing, or it is because of the change in the latitude. If you can work out the paleo position of the basin and the depth. Similarly agglutinated form का तो मैंने बता ही दिया, 12 डिग्री से कम होगा तो या तो आप डीपर वाटर में हैं या फिर आप क्या है, हायर लैटिट्यूड। डिसोल्यूशन है तो आप सीसीडी के नीचे हैं और वो डेप्थ आपको डिसोल्यूशन से। अब पीवी रेशियो मान लो नहीं निकाल पा रहे आप, पीवी रेशियो मान लो नहीं निकाल पा रहे, लेकिन डिसोल्यूशन मिल रहा है प्लैंक्टोनिक फोरामिनिफेरा में, तो डिसोल्यूशन का जो लेवल ऑफ डिसोल्यूशन है उससे हम डेप्थ ऑफ वाटर का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डेप्थ ऑफ वाटर होगी। ऑलराइट, दिस वाज ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। ये डिसोल्यूशन का मैंने आपको बड़ा करके भी दिखाया। ये डायग्राम है, ये तो सीधा सीधा आपने समझ ही लिया है, मोरेज मॉडल फॉर पेलियो एनवायरनमेंट, है ना। इसमें मैनग्रूव, लेगून, नियर शोर, रीफ, फ्लैट, देखिए अलग अलग जोन्स दिए हुए हैं। यदि आपका इस वाइट जोन में गिर रहा है सैंपल तो हाइपरसैलाइन मार्शेस है, आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाले जोन में गिर रहा है तो मार्जिनल में लगून है, आपको ये डॉटेड वाली लाइन में गिर रहा है तो हाइपरसैलाइन लगून है, आपका ये यदि ऑब्लिक लाइन में गिर रहा है तो नॉर्मल मैरीन मार्शेस हैं, और यदि आपका ये चेकर्ड में क्रॉस में गिर रहा है तो मोस्ट शेल्फ एरियाज हैं, और ये आपका सबसे ज़्यादा ये जो क्रॉस चेक्ड है इसमें गिर रहा है नीचे वाले में तो हाइपरसैलाइन लगून्स हैं, है ना, और सॉरी हाइपरसैलाइन लगून है, और यदि यहाँ गिर रहा है तो हाइपोसैलाइन मार्शेस हैं। और ये ये किसने रिवाइज किया? उपकैंग 2018 इन्होंने क्या किया? मोरेज मॉडल को रिवाइज कर दिया, ठीक है। बट हम अभी मोरेज को ही लेके चलेंगे क्योंकि आपको मैं मोटी मोटी बात समझाना चाहता हूँ। ये इसको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत है क्या, या ऑलरेडी आपने समझ लिया है? Do you think I should re-explain it? Anyone? Okay. No, sir. Okay. Hydrogen ion concentration 3 है, excessive concentration
CO3 का, CO2 का डेप्थ पे जाने पे बढ़ जाता है। स्मॉल स्पेसिमेन एक ही स्पीशीज का यदि स्मॉल स्पेसिमेन मिले तो पीएच लो है, और यदि नॉर्मल स्पेसिमेन मिले तो पीएच नॉर्मल है। और जो स्मॉल स्पेसिमेन मिलेगा, आप कहेंगे साहब पीएच के कारण, ये तो हो सकता है न्यूट्रिशन के कारण भी छोटा रह गया हो, लेकिन पीएच के कारण ही छोटा रहेगा तो जो वॉल की थिकनेस है वो भी थिन रहेगी। फुट के कारण यदि है तो वो छोटा रह जाएगा लेकिन वॉल थिन नहीं होगी। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड whether it is because of nutrition, problem of nutrition, or it is because of lowering of pH. इसी तरीके से some species like Trocamina, Anomalina, and they tolerate pH up to 7.2. Now my question is why for porcelaneous forms can tolerate pH up to 7.2? Any answer? कोई आंसर है? हाँ भाई, धर्मेंद्र चौहान, चुप रहते हो तुम माइक्रोफोनोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में तो तुम बड़े एक्टिव रहते थे। धर्मेंद्र, आर यू देयर? धर्मेंद्र भी नहीं है। वेरी गुड। चलिए तो भाई जो लोग हैं उनमें से कोई बता दे। अवनीश, यस सर। ये एग्लूटिने, ये जो आपके पोर्सिलेनियस फॉर्म है, ये पीएच लोअर में भी क्यों रह सकते हैं? उसको बड़ी अच्छी कहावत है, मोटी चमड़ी, याद रख लो, बेशर्म। सर कुछ लोग होते हैं ना, उनको कुछ भी बोलते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मिलियोलिड ऐसे ही है, पीएच नीचे जा रहा, जाने दो, क्यों? चमड़ी मोटी है, 3 लेयर है, रह ले, लेयर है सर, है ना? मोटी चमड़ी याद आ गया ना? यस सर। हाँ, ये मनुष्यों में भी मिलता है। आप कितनी डांट लीजिए, कुछ कर लीजिए, वो रहेंगे वैसे ही। तो मे बी दे आर हैविंग ए मोटी चमड़ी, सो यू कैन रिमेंबर बाय दिस एग्जांपल। मॉर्फो ग्रुप का मैंने आपको बताया, इफ वाटर कंडीशन इज काम, देन elongated species will percentage will be, can be higher, can be, no doubt. It is not necessary, but it can be higher. Or you can say if the percentage of elongated form is more compared to rounded, it means water was calm water condition. और यदि राउंडेड डोमिनेट कर रहे हैं और elongated कम होते जा रहे हैं, तो काम वाटर से किस तरफ आप जा रहे हैं? एजिटेटेड वाटर, है ना? तो इकोलॉजी बेंथिक फोरम से पेलियो मानसूनल प्रेसिपिटेशन की जो स्टडीज है, इसमें सबसे पहले यूज किया गया था मॉर्फोलॉजिकल ग्रुप। अब देखिए, आप चूंकि मेरी क्लास है इसलिए थोड़ा टाइम मैं ले सकता हूँ। इकोलॉजी ऑफ बेंथिक फोरामिनिफेरा में पेलियो मानसूनल प्रेसिपिटेशन का सबसे पहले जो अंदाजा लगाया गया था, वो लगाया गया था परसेंटेज ऑफ राउंडेड कैल्केरियस फॉर्म्स वर्सेस परसेंटेज ऑफ इलोंगेटेड कैल्केरियस फॉर्म्स, और कुछ लोगों ने एग्लूटिनेटेड फॉर्म्स को भी किया था। तो मॉर्फो ग्रुप का मतलब राउंडेड फॉर्म्स और इलोंगेटेड। आर ई रेशियो, राउंडेड स्पीशीज RS versus elongated species ES। ES ज्यादा होगा काम वाटर कंडीशन, और यदि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी ज्यादा मिल गया तो समझिए वाटर फॉर्मेशन ऑफ ऑयल के चांसेस बढ़ गए। अब कहां पर इलोंगेटेड मिलेंगे, कहां पर राउंडेड मिलेंगे, ये हम आपको देखिए, ये हमने कार्टून बनाया है ना। सेडिमेंट फ्रंट नॉर्मल एक्सटेंड, रिवर फ्लो आ रहा है और रिवर आके नॉर्मल फ्रंट है यहाँ तक, उसके बाद इसमें नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। मान लीजिए मानसून नॉर्मल है तो फ्रेश वाटर का फ्रंट का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ तक आएगा, और यदि ये फ्रंट मानसून ज्यादा है मान लो, तो फ्रेश वाटर का कहाँ आएगा? ये एक्सटेंड हो जाएगा। कहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा? यहाँ तक। तो ये एनहेंस प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आपको इलोंगेटेड फॉर्म्स
जो पहले यहाँ तक मिल रहे थे अब आपको यहाँ तक मिलने लगे। और यदि आप बैक करेंगे, अगले साल मानसून कम आया तो फिर वो वाटर फ्रंट क्या होगा, खिसक के रिवर की तरफ जाएगा। तो आप कह सकते हैं यदि इफ मानसून इज गुड, वाटर फ्रंट विल बी एक्सटेंडेड, इफ मानसून इज बैड, वाटर फ्रंट विल बी रिट्रीटेड। तब आप क्या करें, एक कोर लें, माउथ पे जाके एक कोर ले लें, है ना। ये आपने एक कोर सैंपल लिया, एक कोर सैंपल लिया आपने, ठीक है। और इसमें अब मैं आपको वो परसेंटेज ना बता के सीधी लाइन की शिफ्टिंग बताऊंगा। ये मान लीजिए 0 है, नॉर्मल है। ये लाइन जो है डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन मैं बना रहा हूँ, ये 0 लाइन है हमारी, ना मानसून ज्यादा ना मानसून कम, नॉर्मल मानसून। तो ये नॉर्मल फ्रंट की डिस्टेंस हो गया। अब मान लीजिए यहां से लेके यहां तक ये मानसून की फ्रंट यहां तक आई, फिर ये यहाँ आई, फिर ये यहाँ आई, फिर ये यहाँ आई, फिर इधर आई, फिर ये इधर आई, फिर ये। इसको मिलियन ईयर में या ईयर में हम नोट डाउन कर लें, कर सकते हैं डेटिंग, क्यों भाई, डेटिंग कर ली। मान लीजिए ये 1000 है, 1K, ये है 0.9, ये 0.8, 100 ईयर का इंटरवल मान लीजिए। ऐसा होगा नहीं, हालांकि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। 7 और ये 6 है, और मान लीजिए हमने इसको ऊपर बढ़ाया तो ये हम कहाँ तक आ गए, कहाँ तक आ गए, 0 तक, 2021। अब आपको क्या पता लग रहा है कि हर 100 साल में एक स्पेल आता है जिसमें कि मानसून नॉर्मल से ज्यादा रहता है, और 100 साल तक ऐसा होता है। उसके बाद एक पीरियड आता है जिसमें 100 साल तक मानसून बिलो नॉर्मल रहता है, फिर 100 साल का पीरियड आता है। एक सिंपल एग्जांपल, ऐसा होगा नहीं, 77 ईयर की साइकिल ऊपर मैं बताऊंगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? किसके ऊपर निकाला हमने, मार्फो ग्रुप पे। रिवर फ्रंट इंक्रीज कर रहा है, रिवर फ्रंट डिक्रीज कर रहा है, या रिवर फ्रंट नॉर्मल रह रहा है। डिक्रीज का मैंने बनाया ही नहीं, आप कंफ्यूज हो। Could you understand this point? Yes, sir. Anyone? This is very interesting and most scientific, and people are working on it for last 30 years. I was also member of this group, and we have studied paleomonsoon precipitation of 1000 years, 2000 year, 3000 year, 4000 year, and people are now working up to 20,000 year. If we see the record of last 20,000 year, we can tell how monsoon has behaved in the last 20,000 years, and what is the cycle, whether it is whether there is any cycle or not. If there is any cycle, what is the interval of cycle, and where we are in that cycle, whether we are on the decreasing phase or increasing phase. This is what is called monsoonal variability, or this is called paleomonsoonal study. It is very scientific, and it is not only done on the basis of foraminifera but other organisms. सारे ऑर्गेनिज्म जितने मिल रहे हैं सबको ले लिया जाता है और सबकी मदद से निकाला जाता है, फिर उनको एवरेज कर लेते हैं, डेटिंग कर लिया, आपको पता लग गया कि मानसून का बिहेवियर इंडिया में पिछले 1000 साल में। ये ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि जो हमारे पास मेट्रोलॉजिकल डाटा है वो कब तक का है, कितने साल का है, 200 साल का। इंग्लैंड वगैरह में 250-300 साल का होगा, इंडिया में 200 साल का, ब्रिटिश जब आया तब से मेट्रोलॉजिकल डाटा है। तो 200 साल में कोई साइक्लिसिटी पता लग जाएगी, जियोलॉजिकल साइक्लिसिटी? आंसर इज नो। बट इफ यू स्टडी सेडिमेंट and if you study foraminifera and you find out the percentage near the river mouths, you can find out whether monsoon has remained same or it has changed, and what is the behavior of monsoon. But it is not that simple as I have shown you in the diagram. That is for explanation. It will be really complicated to interpret the monsoonal behavior on the basis of chart.
ओके तो इसीलिए फोरामिनीफेरा को भी लेते हैं हम, ब्रायोजोन को भी लेते हैं, ऑस्ट्रोकोट को भी लेते हैं, और भी बहुत सारा डाटा लेते हैं। आजकल तो केव का डाटा भी लेते हैं। मेघालयन एज जो निकाली गई, वो केव में जो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो रहा था, उसमें ऑक्सीजन आइसोटोप की स्टडी की गई, तो पता लगा कि पिछले 40,000 साल से टेम्परेचर बढ़ रहा है। पता लगा ना आपको, मेघालयन एज जिसको बोला है। तो ऐसा हम ट्री रिंग का डाटा भी लेते हैं, आइस के अंदर ट्रैप जो ऑक्सीजन है उसका भी डाटा लेते हैं, बहुत सारे और चीज़ों का, लेक की स्टडी करते हैं, पोलन की स्टडी करते हैं, कॉन्टिनेंट्स पे, ओशंस में, और उसके बाद उस रीजन का बिहेवियर निकालते हैं कि लास्ट 1000 ईयर, 2000 टू 20,000 ईयर इसका मानसून का या प्रेसिपिटेशन का बिहेवियर क्या था। ये किसी चीज से नहीं हो सकता, ये ज्यादातर फोरामिनीफेरा के बेसिस पे ज्यादा होता है, बाकी चीजों से भी होता है। तो आई होप you are enjoying the application of the ecology of foraminifera. All right. ये देखिए यहाँ दिखाया है इस डायग्राम में। आई हैव टेकन दिस फ्रॉम रिसर्च पेपर, नॉट माय पेपर, somebody's पेपर। ये देखिए रिवर आ रही है और ये माइक्रो एनवायरनमेंट बन रही है, कौन सी, फ्रेश वाटर, है ना। और ये देखिए बड़ा सन दिखाया है ना, सन दिखाया है यहाँ पर, पुअर मानसून। और जब हैवी रेनफॉल्स हो रही हैं तो ये वाटर फ्रंट कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो नॉर्मल कहाँ होगा, नॉर्मल यहाँ होगा, डॉटेड लाइन हम बना दें, ये नॉर्मल है और ये एक्सटेंडेड है, ये एक्सटेंडेड हुआ इस साइड और ये रिट्रीटेड हुआ इधर, यदि यहाँ तक है ये रिट्रीटेड हुआ। तो पुअर माइक्रो एनवायरनमेंट, poor environment, micro environment retreats toward the river. Good means micro environment is spreading seawards. This is how we can, in the examination we can show. Exam में आप कार्टून तो नहीं बना सकते, but you can draw this diagram. I hope you understand. Okay? Could you follow it? Yes, sir. Yes, sir. अब आप कहेंगे सर ने तो डायग्राम ही डायग्राम दिखाया, ये एक्चुअल देखिए आप, ये चाइना की है ना, ये चैंजियांग रिवर है और इसकी एस्चुरी है। और ये देखिए यहाँ पर ब्लू लाइन और ये रेड लाइन है, और ये सैटेलाइट इमेज है जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेडिमेंट फ्रंट है, ये सेडिमेंट फ्रंट यहाँ तक है, और सेडिमेंट फ्रंट अब देखिए कैसे एक्सटेंड हो रहा है, ये सेडिमेंट फ्रंट है और ये एक्सटेंड हुआ, तो जब ये हायर फ्लो होगा तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, और यदि लोअर होगा ये क्या होगा, रिट्रीट बैक कर जाएगा। तो ये एक्चुअल पिक्चर है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग को थ्योरेटिकल बात बता रहे हैं, इस सैटेलाइट की पिक्चर से मदद से हम समझ रहे हैं कि इंडिया की जितनी रिवर्स है उनके वाटर फ्रंट कैसे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सेडिमेंट का कलर चेंज हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये डाटा देखिए इंटरप्रिटेशन का है, इसमें क्या किया गया, मॉर्फो ग्रुप और प्लैंक्टोनिक वर्सेस बेंथिक ग्रुप लिया गया, और बेंथिक टेस्ट पर यूनिट वेट लिया गया, 3 पैरामीटर लिए गए। ये निगम का पेपर है, निगम एंड बर्कर फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। निगम साहब के बारे में मैं बता दूं आपको, ही इज वन ऑफ द वेरी गुड साइंटिस्ट एंड वी आर गुरु भाई। He did his PhD under the same supervisor under whom I did. So he took up the application part, I took up the taxonomy. Okay. Anyway, so this is paper by him, and now I will run it and try to see. This is 1915 peak. This is 1800 BP. ऊपर 1915 AD. Here this peak is 3000 BP. This peak is 3500 BP. This peak is 3790 BP. This peak is 4050 BP. And this peak is 4380. It means this is how the cyclicity in monsoon is changing from last 4380 or 5000 year up to 1915 तक का डाटा इसमें लिया गया था। और ये देखिए ये जो मिल रही है, ये जोन मिल रहा है, ये पर्टिकुलर जोन, इस पे भी आप ध्यान दें। तो जहां भी ये जोन मिल रहा है ना, ये जोन जहां भी मिल रहा है वहां पर ये क्या क्या चीज ली गई,
एंगुलर एंड एसिमेट्रिकल फॉर्म, वही जो मैंने आपको बताया, राउंडेड इलोंगेटेड फॉर्म, फिर प्लैंक्टोनिक बेंथिक फॉर्म, और टोटल नंबर ऑफ बेंथिक फोरामिनिफेरा पर ग्राम सैंपल। ये तीनों के तीनों इंडिकेट कर रहे हैं कि मानसून जो है वो टाइम करस्पॉन्डिंग टू द क्लाइमेट वेरिएंट एक्सट्रापोलेटेड डेट्स इन ईयर्स, है ना। अब ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, हाई प्रेसिपिटेशन, लो प्रेसिपिटेशन, लोएस्ट प्रेसिपिटेशन। तो लो मानसून कब हुआ, 4380 वाले के पीरियड में आसपास। फिर दूसरा लो मानसून आया 4050, तीसरा लो मानसून पीरियड आया 3750, फिर चौथा आया 3500, पांचवा आया 3000, छठवा आया 1800 बीपी, एंड छठवा आया ये क्या सातवां आया 1915 एडी। तो ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट कर रहे हैं लोग बाग, ये उतना सत्य नहीं है। सत्य क्या है, अर्थ की जो क्लाइमेटिक साइकिल है वो चेंज होती है। अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्लाइमेटिक साइकिल चेंज क्यों होती है? आई थिंक यू मस्ट बी हैविंग दिस क्वेश्चन इन योर माइंड, है ना। ये लोएस्ट मानसून है, ठीक है। तो अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में, दैट इज कॉल्ड मिलानकोविक साइकिल। मिलानकोविक साइकिल आप नोट कर लीजिए, इसको नेट पे देखिए। व्हाट इज मिलानकोविक साइकिल? इज ए रशियन साइंटिस्ट। एंड व्हाट इज सब मिलानकोविक साइकिल? This cycle is based on the appearance of black spots in the sun. When there is a black spot, the solar flux will be reduced, and that will reduce the temperature. And if there is a removal of black spot, then there will be more flux, and the temperature will be high. So appearance and disappearance of black spot is a cyclic phenomena in the solar layer, and that is called Milankovic cycle. And this cycle is having sub-cycle of 11 years each. Means one Milankovic cycle of 77 years has 7 cycles of 11 years. So it is just like your anticlinorium. What is the anticlinorium? This is if we have this ऐसा बनाते हैं ना आप एंटीक्लाइनोरियम, ऐसा बनाते नहीं बनाते, फिर आप सिंक्लाइनोरियम बनाते हैं, फिर एंटीक्लाइनोरियम। तो ये एंटीक्लाइनोरियम मान लीजिए यहाँ से शुरू है, तो ये पूरा का पूरा कितना है 77 ईयर्स का, और उसमें से एक एक जो है वो कितने का है 11 ईयर्स का। ऐसे वहां पर 7 हैं। और फिर सिंक्लाइनोरियम बनेगा, तो यहाँ वर्ड हम यूज नहीं करेंगे एंटीक्लाइनोरियम सिंक्लाइनोरियम, हम ये कहेंगे राइजिंग ऑफ टेम्परेचर, lowering of temperature, 77 years cycle, and cycle is having 11 years subcycle. I hope you understand what I mean. We can discuss this thing in the form of a lecture, and there are scientists who are delivering lecture on Milankovic, so you can listen such lectures on YouTube if you are really interested to understand the phenomena. But this is telling us the natural cycle instead of telling the change in because of the global warming. I hope it is you could understand what I mean to say, and this is all for a day. It will be too much if I go beyond this point. Any question in this part? अटेंडेंस क्या है भाई अवनीश? 25, मतलब 23 लोग हैं। हाँ मैं देखूं जरा, अवनीश, दीपक, एकता, फुजैल, गंगोत्री, यशवंत, कावेरी। अभी तो मैं पूछ रहा था तुमसे सर। एक्चुअली में क्या होता है कि नेटवर्क इशू होता है सर, मैं सागर में नहीं बना अभी। अच्छा नेटवर्क है। विक्रम, यामिनी, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं है। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं साइंस में, हम लोग उसको एंजॉय करें, है ना। एंड आई एम देयर टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग. So if you have no question, I think I have talked too much.
and I should get some rest. एक आध बार तुम लोगों से क्लास लेने बोले हम 1 घंटे की, क्यों भाई अवनीश? 1 घंटे लेंदी हो जाएगा सर, 1 घंटे बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे तो हम लोग तो 1.25 घंटे से बोल रहे हैं यार। आपको मैं स्लाइड पूरे दे देता हूँ पावर पॉइंट, आप बोलिए 1 घंटे। मेरी मंडे ट्यूसडे में मेरे 3 लेक्चर होते हैं, बीएससी के 2 लेक्चर होते हैं, फिर एक प्रैक्टिकल। आई स्पीक अराउंड 4 hours इन ए डे, बट आई मेरी शायद अब कभी कभार एक आध क्लास मिसमैच हो जाती है, नेटवर्क नहीं आ रहा या कोई काम आ गया। अदरवाइज सी दैट आई मीट देम at right time and I keep them engaged for the required length of time. So this is anyway you can also develop this practice, because I want to be with my students. This is my love towards my students. We don't need anything, we need only our class and student. सारी चीज भूल जाएंगे हम, हमें बाहर की कोई चीज से मतलब नहीं। क्लास में हम हैं, कौन क्या कर रहा है, we are not bothered. So I enjoy, at least I enjoy with my students. आप एक्चुअली यहाँ है नहीं, यदि आप फिजिकली होते तो आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड इन अ मच बेटर वे। एनीवे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। सर।